Hello students, welcome back to our YouTube channel Empower Education, and this is Sneha, your mathematics teacher. So I hope all of you are doing very well and all of you are safe at your home. So students, last session में जब हमने 11th standard का mathematics paper 1 start किया, that time we have seen lesson number 1 and उसका कुछ introductory part हमने इस lesson में उस session में देखा. So it is in this today's session we are going to see the next part of the same lesson, angle and its measurement. फर्स्ट लेसन है मैथ्स पेपर 1 का. सो आज पार्ट देखने वाले कुछ नेक्स्ट पार्ट हम इस सेशन का देखने वाले रिगार्डिंग एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. Okay, so particularly students, in this session we are going to see types of angles, but these are the types which are depending upon the position of the initial ray and the terminal ray, and also these are depending upon the rotation of the initial ray. Okay, so let's start for the session. So first point, that is zero angle. So what is zero angle? So we will also see the figure regarding this point, and also we will see the definition. Okay, see. So if the ray OA has zero rotation, that is, it does not rotate the initial arm itself, is the terminal arm OB, the angle so formed is a zero angle. So in previous session, we have also seen what is directed angle, what is initial ray, what is the terminal ray. So suppose here in this figure, OA is the initial ray. Just wait. Okay, so OA ये जो है वो initial ray है, and we will not rotate that ray. मतलब वो ray जो है वो हमने वैसे ही रखा, उसको किसी भी direction में neither clockwise nor anti-clockwise हमने rotate नहीं कहा, किसी भी तरीके से rotate नहीं किया, तो उसका जो angle form होगा that is zero angle. So they have said here that is if the ray OA has zero rotation, that is it does not rotate the initial arm itself, it is a terminal arm OB. The angle so formed is a zero angle, means initial position जो है ray का वही उसका होगा final position, that is terminal position. So this ray is a zero angle, or this is called as a zero angle. Okay, now the next point we will see, that is next type of angle, that is one rotation angle. So देखो figure भी यहाँ पे दिया है. Now see what is the definition. After one complete rotation, if the initial ray OA coincides with the terminal ray OB, then so form angle is called as a one rotation angle. Means जो ray है initial ray उसको पूरा rotate करना है into 360 degree. But again after complete rotation, that terminal ray also occupies the position of the initial ray. So in this case, we can rotate the initial ray into clockwise direction and also in the anti-clockwise direction. But the position of the initial ray and the terminal ray is same. Now इन केस ऑफ प्रीवियस एंगल जो हमने देखा जीरो एंगल, वहां भी इनिशियल रे और टर्मिनल रे का पोजीशन सेम था, लेकिन रोटेशन हुआ नहीं था. लेकिन इन दिस केस वो जो इनिशियल रे है वो पूरा रोटेट होता है 360 डिग्री में, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो यहाँ पे देखो ओए इनिशियल रे है वो पूरा यहाँ से देखो रोटेट होके फिर से उसी पोजिशन पे आ गया, लेकिन जो टर्मिनल उसका पोजिशन होगा उसको हम कहेंगे रे ओबी. एंड अगेन इन द सेम केस मीन्स इन केस ऑफ वन रोटेशन एंगल, वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया, सो देखो यहाँ पे अंदर जो एंगल दिखा है वो है, और वो अगेन दैट इनिशियली ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन, बट रोटेशन इज वन रोटेशन, मतलब वन कंप्लीट रोटेशन, दैट इज एंगल विल फॉर्म that is of measure 360 degree, and that is also directed angle. So see, therefore measure of angle AOB is equal to 360 degree. So अगेन पहले यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया फिर भी 360 डिग्री है, लेकिन साइन एक्चुअली माइनस 360 डिग्री होना चाहिए. लेकिन ओनली इफ यू विल टॉक अबाउट द मेजर, देन इन बोथ द केसेस इफ यू विल रोटेट इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यू विल रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द मेजर इज सेम, दैट इज 360 डिग्री. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेट एंगल. देखो फिगर भी यहाँ पे दिया है. सी व्हाट इज द डेफिनेशन. सी after the rotation, if the initial ray OA and the terminal ray OB are in opposite directions, then the directed ray so formed is known as a straight angle. मीन्स अगर यहाँ पे इनिशियल रे है तो वो रोटेट होके क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में है, मतलब उसका जो एरो जो है वो पॉइंट कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, लेकिन वो रोटेट होके कहाँ पे आ गया, दूसरे डायरेक्शन में, लेकिन एरो का पॉइंटर कहाँ पे हो गया, एग्जैक्टली अपोजिट टू द इनिशियल पोजिशन. सो यहाँ पे जो है वो एरोस का दोनों का डायरेक्शन जो इनिशियल पोजिशन का और टर्मिनल पोजीशन का वो एग्जैक्ट अपोजिट है. सो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल. आपको पता चल गया होगा कि इसका मेजर भी क्या हो सकता है, अगर पूरा हाफ ऑफ वन रोटेशन अगर हमको एंगल का मेजर मिल रहा है, सो दैट विल बी 180 डिग्री. सो अगेन सी व्हाट इज द डेफिनेशन.
after the rotation, if the initial ray OA and the terminal ray OB are in opposite directions, then the directed angle so formed is known as a straight angle. So in the same case हम क्या कर सकते हैं, initial ray को clockwise भी rotate कर सकते हैं and anti-clockwise भी rotate कर सकते हैं. In both the cases you will get the measure equal to 180 degree. And यहाँ पे जो है line form हो जाएगा. And यहाँ पे देखो, so note that in this case AOB is a straight line and half of one rotation angle is a straight angle. So one rotation angle means 360 degree उसका measure होता है and straight angle means क्या हो जाएगा उसका measure 180 degree, and so it forms a straight line. In this case both arrows are pointing in the opposite direction. Okay, I hope all of you understood this point. Now we will go to the next type of angle, that is a right angle. ये बहुत easy part है, आपको भी पता है. So see what is the figure given and what is the definition. So 1/4 of one rotation angle is called as a one right angle. It is also half of a straight angle and one rotation angle is 4 right angles. So देखो 1/4 of one rotation angle, 1/4 of one rotation, इस पूरा rotation means what, 360 degree angle, और उसका 4 part, मतलब अगर उस 360 डिग्री को अगर हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका एक पार्ट जो है उसको हम कह सकते हैं राइट एंगल. So it is a fourth part of one rotation angle, that is right angle, and also it is a half of straight angle. अभी हमने straight angle भी देखा है, so आपको फिगर से भी पता चल गया होगा कि इस फिगर में यहाँ पे दिया है, देखो ये जो है एंगल AOB वो है राइट एंगल, एंड अगेन AOB means in AOB dash, so that is again right angle. So these are two right angles, and so यहाँ पे पूरा जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे BOB dash, that is a straight angle, and ये दोनों जो है right angles exactly half of the straight angle. Okay, now the next point, angles in standard position. So हमने अभी देखा जीरो एंगल क्या है, वन रोटेशन एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है. now angles in standard position. So देखो what is the definition given. In the rectangular coordinate system, the directed angle with its vertex at origin O and initial ray along the positive x-axis is called angle in a standard position. So हमें xy coordinate system क्या है पता है, x-axis होता है horizontal, y-axis होता है vertical position में. So and उनका point of intersection क्या होता है, point O, and for that point we also call it as a origin. So जो भी कोई एंगल फॉर्म होगा, so वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, वैसा हम कब कह सकते हैं, when initial ray along the positive x-axis. So initial ray जो है वो along the positive x-axis होना चाहिए, means कौन सा भी एंगल का इनिशियल रे वो जो है वो x-axis के पॉजिटिव साइड के साथ क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए. एंड ओरिजिन मतलब वो जो रे है वो O से ही स्टार्ट होना चाहिए, मींस ओरिजिन से ही स्टार्ट होना चाहिए. सो अगर ऐसा कौन सा भी रे है तो जिसमें इनिशियल रे इज अलोंग विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, सो सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज अ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. उनका टर्मिनल रे कहाँ भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल रे has to be coincide with the positive direction of x-axis. Okay, some more points regarding this same point we will see. Okay, see यहाँ पे फिगर दिया है, in adjoint figure angle XOP, these are the directed angles, directed angle XOP, directed angle XOQ and directed angle XOR are in a standard position. So देखो यहाँ पे इनिशियल जो रे है हर एक एंगल का वो along with the क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis. सो जो कोई रे होगा उसका जो कोई एंगल होगा उसका इनिशियल रे होगा OX रे, एंड उनका टर्मिनल रे कहाँ पे है, यहाँ पे इन फर्स्ट एंगल OP है, इन सेकंड एंगल OQ है, एंड इन थर्ड एंगल OR है. सो ऑल these directed angles XOP, XOQ and XOR are the angles in a standard position. Now one more angle they are shown in the figure, that is angle XOQ, directed angle XOQ, sorry directed angle POQ. directed angle POQ भी एंगल है, लेकिन वो डायरेक्टेड एंगल भी है, लेकिन उसका इनिशियल रे जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis के साथ वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है. सो ये एंगल तो डायरेक्टेड है, लेकिन दैट कैन नॉट बी अ एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. नाउ एंगल इन अ क्वाड्रेंट. सो व्हाट इज एंगल इन अ क्वाड्रेंट, सेम फिगर हम ले सकते हैं जो प्रीवियस पार्ट के लिए लिया था. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन. The directed angle in a standard position is said to be in a particular quadrant if its terminal ray lies in that quadrant. So यहाँ पे जो है दो कंडीशंस हमें देखने कि वो डायरेक्टेड एंगल होना चाहिए जब एंगल इन अ क्वाड्रेंट हम कंसीडर कर रहे हैं.
सो जो कोई एंगल है वो डायरेक्टेड एंगल होना चाहिए और दैट एंगल हैज टू बी इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। फर्स्ट पार्ट में वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए, मींस हर एक एंगल जो क्वाड्रेंट एंगल में है उनका इनिशियल रे दैट हैज टू बी कोइंसाइड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड उसका टर्मिनल रे किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सो देन ओनली वी कैन कॉल दैट एंगल इज अ एंगल इन अ क्वाड्रेंट। सो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है तो हम उनको कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड है या थर्ड में। सो सी यहाँ पे दिया है एग्जांपल, फिगर में दिया है डायरेक्टेड एंगल्स, एंगल XOP, एंगल डायरेक्टेड एंगल XOQ एंड डायरेक्टेड एंगल XOR लाइन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स रिस्पेक्टिवली। सो सबसे पहले हमें क्या कंडीशन देखना है, एंगल जो है डायरेक्टेड एंगल होना चाहिए। सो XOP डायरेक्टेड एंगल है, सिमिलरली XOQ डायरेक्टेड एंगल है, XOR डायरेक्टेड एंगल है और हर एक का इनिशियल रे जो है वो कोइंसाइड हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो दीज आर द फर्स्ट 2 पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन एंगल इज इन क्वाड्रेंट। एंड टर्मिनल रेज जो है वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई हो रहे। सो यहाँ पे OP जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, OQ जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है एंड OR इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो दीज आर द एंगल्स व्हिच आर इन अ क्वाड्रेंट, एंड डायरेक्टेड एंगल XOP, डायरेक्टेड एंगल XOQ एंड डायरेक्टेड एंगल XOR. So these are angles in quadrant. Okay, now the next point, quadrantal angles. So हर एक डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग है। कुछ डायरेक्टेड एंगल्स, ऑल आर द डायरेक्टेड एंगल्स। किसी एंगल्स में कंडीशन है कि वो सबसे पहले जो है वो उनका इनिशियल रे कोइंसाइड होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मींस the angles has to be in standard position. So and the next part जो है हर एक एंगल के लिए वो डिफरेंट है, कभी क्वाड्रेंट में लाई होता है, कभी एग्जैक्ट एक्सिस पे लाई होता है। सो ये जो एंगल है क्वाड्रेंट एंगल, सो उसका टर्मिनल रे जो है वो कहाँ पे लाई होगा, एग्जैक्ट ऑन द एक्सिस। So see what is the definition given. A directed angle in standard position whose terminal ray lies along x-axis or y-axis is called a quadrantal angle. Quadrantal angle में जैसे पहले डेफिनेशन में हमने देखा एंगल इन क्वाड्रेंट, सेम वे में यहाँ पे भी दो इनिशियल कंडीशन है कि डायरेक्टेड एंगल होना चाहिए एंड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होना चाहिए, मींस उसका इनिशियल रे लाई होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ और टर्मिनल रे जो है वो वाई एक्सिस पे भी लाई हो सकता है, नहीं तो एक्स एक्सिस पे भी लाई हो सकता है। सो देखो यहाँ पे कैसे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं एंगल्स की, फिगर विद द हेल्प ऑफ फिगर। इन फिगर डायरेक्टेड एंगल XOP, डायरेक्टेड एंगल XOQ एंड डायरेक्टेड एंगल XOR and directed angle XOS are all quadrantal angles. So देखो यहाँ पे in all these figures the angles which we have considered as examples all are directed angles. These are the angles in standard position and for each angle the terminal ray either lie on x axis or on y axis. So for angle XOP, अब XOP ये जो एंगल है XOP ये एंगल यहाँ पे 0 रोटेशन दिखा रहा है। नाउ नेक्स्ट है XOQ, XOQ देखो यहाँ पे यहाँ तक रोटेशन दिया है। नाउ नेक्स्ट है XOR, XOR जो है वो है स्ट्रेट एंगल। द लास्ट वन इज XOS। सो XOA जो है, XOS जो है वो पूरा यहाँ तक है। XOS मीन्स ये जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। सो ऑल दीज एंगल्स आर एंगल्स इन standard angles in a quadrantal angles or we can call them simply as a quadrantal angles. So देखो यहाँ पे angles directed angle भी है, angle in a standard position में भी है और the terminal ray either lie on x axis or y axis. So ये जो है XOP अगर हमने देखा तो यहाँ पे XOP को हम पूरा भी रोटेट करके ला सकते हैं, मतलब 0 एंगल भी कंसिडर कर सकते हैं और अगर रोटेट किया तो वो 360 डिग्री एंगल भी हमें मिल सकता है। Okay, so these are the examples for the quadrantal angles with the help of figure. Now one more angle they have shown here, that is XOQ. So XOQ हमने देखा, लेकिन हमने यहाँ पे देखा, लेकिन दूसरे साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, उस रे को रोटेट कर सकते हैं XO को। तो यहाँ से पूरा फिर से यहाँ तक आ गया। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रोटेट किया, फिर भी डायरेक्टेड एंगल XOQ मिल गया एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, फिर भी हमें वहां पे एंगल मिल गया, एंगल XOQ. Now the next part, कोटर्मिनल एंगल्स। सो देखते हैं इसका फिगर एंड डेफिनेशन। सो कभी कभी जो एंगल का नेम दिया होता है, एंगल का नाम दिया होता है, उससे ही हम पहचान जाते हैं कि एंगल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा और उसका फिगर हम इमेजिन कर सकते हैं। सो नाउ डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन
having the same positions of initial rays and terminal rays are called coterminal angles. So देखो हमने जीरो एंगल में भी देखा कि वो इनिशियल रे टर्मिनल रे सेम पोजीशन पे होता है, वन रोटेशन एंगल में भी देखा कि इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे सेम पोजीशन पे होता है, और कोटर्मिनल एंगल्स ये जो डेफिनेशन है और ये जो एंगल का टाइप है वहां पे भी क्या होता है, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे का पोजीशन जो है वो सेम रहता है। मींस कहा फर्स्ट पार्ट में अगर हमारे पास एक एंगल है, देखो यहाँ पे एंगल एओबी, तो यहाँ पे 30 डिग्री से रोटेट किया है इस एंगल को, लेकिन कुछ तो अमाउंट से वो रोटेट किया है। फिर से हम क्या कर सकते हैं, इस रे को रोटेट कर सकते हैं और फिर से ओबी के पोजीशन पे ला सकते हैं। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो हमें मिल गया एंगल 390 डिग्री, और फिर से हमने इस रे को रोटेट किया अगेन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो हमें मिल गया इनिशियल पोजीशन ओए है और टर्मिनल पोजीशन है ओबी। मींस यहाँ पे जो है डिफरेंस क्या है, जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल एंड कोटर्मिनल एंगल्स। जीरो एंगल एंड वन रोटेशन एंगल में इनिशियल एंड टर्मिनल रे सेम पोजीशन पे, मतलब एक ही इनिशियल रे एक ही टर्मिनल रे, लेकिन एक में रोटेशन जीरो है, एक में पूरा रोटेशन है। और कोटर्मिनल एंगल्स में अलग अलग टाइप्स के एंगल्स ले सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए इनिशियल रे सेम है और उन सब के लिए टर्मिनल रे सेम है। ओके, सो देखो डेफिनेशन क्या है, directed angles of different amount of rotation having the same positions of initial rays and terminal rays are called coterminal angles. So देखो यहाँ पे in this figure हमने पहले भी देखा कि एंगल AOB is 30 डिग्री। जब हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, फिर से हमने उसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आके फिर से उसको रोटेट किया, सो हमें मिल गया 360 तक रोटेट किया। फिर से आपने आगे ले लिया बिकॉज हमें ओबी पोजीशन ऑक्यूपाई करना है, सो 390 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके मिल गया। और फिर से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया इनिशियल पोजीशन से लेकर फिर से टर्मिनल पोजीशन तक, तो हमें मिल गया है -330 डिग्री एंगल। सो दीज आर द कोटर्मिनल एंगल्स। उनका इनिशियल रे सेम है, टर्मिनल रे सेम है, एंड लेकिन अमाउंट ऑफ रोटेशंस आर डिफरेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे फिर से हम फिगर के साथ हम और उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखो इन अबाव फिगर द डायरेक्टेड एंगल्स हैविंग मेजर 30 degree, 390 degree, -330 degree and -690 degree have the same initial arm ray OA and the same terminal arm ray OB। मतलब इनिशियल रे और टर्मिनल रे का पोजीशन अलग है, लेकिन हर एक एंगल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन है, लेकिन उनका इनिशियल पोजीशन से इनिशियल रे सेम है और टर्मिनल रे सेम है। सो देखो यहाँ पे 30 डिग्री फर्स्ट फिगर में हमने देखा, तो रे को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री है। देन 390 डिग्री मींस पूरा हमने एंटी क्लॉकवाइज प्लस है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक रोटेट करके फिर से ओबी का पोजीशन मिल गया। नाउ -330 डिग्री अब हम ये सेकंड फिगर में देखेंगे। सो ये 30 डिग्री हर एक में उन्होंने दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या डिफरेंस है उन हर एक एंगल में। उनका रोटेशन अलग है, रोटेशन करने का डायरेक्शन अलग है, लेकिन टर्मिनल एंड इनिशियल रेज आर सेम। सो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया टू गेट द पोजीशन ओबी, सो -330 डिग्री मिल गया। एंड अगेन यहाँ पे जो है इनिशियल माइनस ही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से पूरा फिर से क्लॉकवाइज जाके फिर से 360 डिग्री वन रोटेशन कंप्लीट किया, और फिर से हमने आगे तक जाके फिर से ओबी पोजीशन ऑक्यूपाई किया। सो वो एंगल हो गया -690 डिग्री। देखो यहाँ तक ही आ गया, तो यहाँ तक अगर आ गया होता तो हमें मिलता है 720, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो पूरा वन रोटेशन कंप्लीट करके फिर से थोड़ा सा हमने थोड़ा और 180 के आगे भी उसको रोटेट किया, तो हमें मिल गया -690 डिग्री। सो दीज आर ऑल रेज which have initial ray OA and terminal ray OB, लेकिन सभी एंगल्स में अमाउंट क्या है, रोटेशन का अलग अलग है। Now see, if the two directed angles are coterminal angles, then difference between measures of these two directed angles is an integral multiple of 360 degree. So आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि what are coterminal angles? So आप कह सकते हैं कि the angles for those difference between the measures is equal to multiple of integral multiple of 360 degree. Integral multiple of 360 means जब भी आप उन एंगल का डिफरेंस, उनके मेजर का डिफरेंस लेते हो, तो जो भी कोई नंबर आपको मिलता है उस नंबर को आप लिख सकते हो 360 इंटू सम नंबर, मीन्स 360 के मल्टीपल के फॉर्म में उस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर हमने 390 डिग्री ले लिया एंगल, जो यहाँ पे फॉर्म हो गया फर्स्ट इसमें, एंड दूसरा ले लिया -330। अब एंगल ही माइनस है, लेकिन उनका फिर से डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पे हो गया एडिशन एंड हमें मिल गया माइनस माइनस प्लस, सो इक्वल टू 720 डिग्री। एंड नो वी नो
we can represent 720 into equal to 2 into 360. इट इज मल्टीपल ऑफ 2 360 का जो अगर हमने मल्टीपल ले लिया 2 टाइम्स और 360 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाता है 720 डिग्री. सो दीज आर द कोटर्मिनल एंगल्स. उनका इनिशियल रे टर्मिनल रे सेम होता है लेकिन अमाउंट ऑफ रोटेशन डिफरेंट होता है. एंड कोटर्मिनल एंगल्स के डिफरेंस मेजर का डिफरेंस अगर हम ले तो लेने के बाद उनका जो वैल्यू है वो आता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. So this is all about types of angles for this lesson. Okay, so now thanks for watching this video and हमारे इस empower tutorial के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे. अगर आपका ये वीडियो आपके पढ़ाई में हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलो ताकि जो भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा. और आपके कोई सजेशंस है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हो. तो आज की सेशन में यही रुकते हैं. तो घर पे रहो, सेफ रहो. नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.